हम लोगों ने समझा था कि कैसे इंपीरियल बैंक एस्टैब्लिश हुआ और इंपीरियल बैंक के पहले 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स बने, उसके अलावा बहुत सारे एंटिटी ओन्ड बैंक्स जो हैं वो बनते रहे, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक। ये सब बैंक्स इंडिपेंडेंट इंडिया में बहुत लंबे टाइम तक रहे और बहुत लंबे टाइम तक हमने ये देखा कि ये बैंक्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरह काम करते रहे और अब ये मर्ज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, राइट? इसके बाद what we saw on 27th January 1921 is the establishment of Imperial Bank by amalgamating 3 presidency banks, Bank of Bombay, Bank of Madras and Bank of Bengal, right? And this was created under the Imperial Bank of India Act 1920. British Raj के दौरान ये Imperial Bank create कर दिया गया, and the role of Imperial Bank was to be a commercial bank, one. Secondly, it should be the banker's bank. It should be supporting other banks as a centralized bank, and then banker to the government. But later on 1935 में Reserve Bank of India का गठन कर दिया गया. It was constituted in 1935 and it took all functions from Imperial Bank of India except commercial banking. तो जो Central Bank of India है वो 1921 से 1935 तक we can see that Imperial Bank of India stayed as a central bank of the country. And in 1935 when Reserve Bank of India was formed, we could find out that all these central banking functions, bankers bank and banker to the government of India was taken over by Reserve Bank of India, and Imperial Bank remained as the commercial bank. And today in India's scenario, it is the largest banking entity in the country, whether it is a private bank or a public sector bank. Irrespective of that, we can see that it has the largest capacity. Right, so that's the that is the history of Imperial Bank as well as Reserve Bank of India. Now let us move towards banking growth in pre-independence era, which is postal savings bank. The most important was that government in any case was not able to reach out to a number of people in this country, and even during British Raj, they wanted, even the private banks and other organizations in the financial sector, they wanted to move to the core people of the country, right? Because banking was at that time held by people who were rich, people who were affluent. Absolutely. And if that's the point, then the banks and financial organizations may not flourish in that way, right? So we have thought that the banking should be taken to the core people. Sir, you are on mute. Oh, sorry, I went on mute. Oh, apologies. Yeah. So first purpose of bringing postal savings, that is bringing post offices into existence, was to mobilize the savings. Mobilize the savings means हो सकता है किसी एक जगह, एक पार्ट ऑफ इंडिया में सेविंग्स हो, बट वहां पर इन्वेस्टमेंट या उस सेविंग्स को लोन में कन्वर्ट करने की जरूरत ना हो. So banks do what? They take deposits, they take savings from you, and then they give that as a loan to someone else in the country. तो मोबिलाइज करना पड़ेगा कि कहां पर रिक्वायरमेंट है फाइनेंस की, सेविंग्स को वहां मोबिलाइज करना पड़ेगा. Developing banking habits of middle and lower class people in the country. So slowly but steadily, the mobilization of savings and development of banking habits started for middle and lower class in late 18th century. Saving banks business in India was conducted by government since East India Company. So हमको पता था 1857 और उसके कुछ टाइम बाद तक ईस्ट इंडिया कंपनी ही फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस को ओन करती थी, बट 1869 ऑनवर्ड्स धीरे धीरे करके जो रॉयल सोसाइटी थी, जो क्वीन थी, उसके अंडर जो सारा एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट उसके अंडर आ गई. तो उसके बाद धीरे धीरे करके बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सपोर्टेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी आल्सो केम अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट और the British Queen.
Government savings banks were established first in the 3 presidency towns between 1833 and 35, ये हमने देख ही लिया, and later at selected district treasuries. देखिए सरकार जैसे काम करती है, सरकार को किसी तक पैसा पहुंचाना होता है, सरकार को लोगों के पास तनख्वाह या पेंशन देनी होती है, तो सरकार ट्रेजरी का इस्तेमाल करती है। ट्रेजरी जो है वो राज्य सरकार के पास भी होती है और राज्य के हर जिले में भी एक ट्रेजरी होती है। तो 1870 में वो पहला मौका आया जब हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरीज तक पैसा पहुंचने लगा, बट इन सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरीज, और वहां पर उन्होंने सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलने की फैसिलिटी लोगों को देनी शुरू कर दी। 1882-1883 savings banks were opened at post offices throughout the country, and this was taken over by the business of district savings banks in 1886 and of the presidency savings banks in 1896. पोस्ट ऑफिसेस उन 1882-83 के बीच में खुलने लगे। उन्होंने प्रेसिडेंसी बैंक्स, जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स थे उनका सेविंग्स बैंक, और डिस्ट्रिक्ट सेविंग्स बैंक जो ट्रेजरीज के पास था, वो दोनों काम पोस्टल सेविंग्स ने लेना शुरू कर दिया और पोस्ट ऑफिसेस ने सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलना शुरू कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज रिड्यूस्ड स्टेडीली फ्रॉम 4:1.6% to 3% in 1905 and 2.5% in 1933. तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था जो सेविंग्स बैंक अकाउंट पे दिया जाता था, वो 4.25% से 2.5% कर दिया गया 1879 से 1933 के बीच में। और ये किस लिए किया गया? आपको याद हो तो जो फेलियर हो गया था पहले बैंक्स का, दैट वाज बिकॉज ऑफ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स। और 1933 आते आते क्या रिकमेंडेशंस आई इंप्रूवमेंट के लिए? नंबर ऑफ सेविंग बैंक ऑफिसेस शुड बी इंक्रीज्ड, लिमिट ऑफ डिपॉजिट्स शुड बी इंक्रीज्ड विद रिस्पेक्ट टू माइनर्स। माइनर्स के अकाउंट्स बहुत मुश्किल से खुलते थे और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी कि उनके नाम पर कोई डिपॉजिट्स ज्यादा नहीं कर सकता, सो रेज द लिमिट। इंट्रोडक्शन ऑफ अ सिस्टम ऑफ चेक्स फॉर विड्रॉइंग एंड डिपॉजिटिंग, तो जो पहले विड्रॉल स्लिप पे या वैसे ही कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के थ्रू विड्रॉल हो जाता था, उसकी बजाय सरकार ने और बैंक्स ने फोकस किया कि चेकबुक का इस्तेमाल किया जाए, चेक्स दिए जाएं लोगों को ताकि वो पैसा निकाल सकें, एक रिकॉर्ड हो पैसा निकालने का, एक ऑफिशियल प्रोसीजर। Thereafter, permitting the opening of joint accounts and incorporation of provision of designation of nominees of account holders. Joint accounts खुलने लगे, जैसे आप सब जानते हैं हस्बैंड वाइफ के joint accounts होते हैं, etc etc। बिल्कुल इसी तरीके से joint accounts पार्टनर्स के भी खुलने लगे, बिजनेसेस के भी खुलने लगे, और उसके बाद हर अकाउंट के अंदर अकाउंट होल्डर्स का नॉमिनी भी ऐड होने लगा, क्योंकि अब आप लोग जानते हैं जैसे इन द करंट मॉडर्न एरा जब किसी की डेथ होती है और नॉमिनी अकाउंट में नहीं होता है तो आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, आपको एफिडेविट्स बनवाने पड़ते हैं, कोर्ट से ये बताना पड़ता है कि आप ही उनके लीगल एयर हैं, प्रूफ करना पड़ता है, कोई और लीगल एयर नहीं है तो आपको पैसा मिलता है। तो दिस पर्टिकुलर प्रोविजन स्टार्टेड फ्रॉम 1930s कि बैंक्स में अकाउंट होल्डर्स के नाम के आगे नॉमिनीज होने चाहिए। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, अभी तक जितना हम लोगों ने बैंकिंग हिस्ट्री को समझा, नाउ द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा हैज कम अप। आरबीआई entrusted with the power of supervising the banking system in the country in 1948। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बना दिया गया और उसके अंडर आरबीआई को एम्पावर कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दे दी गई कि वो सब तरीके के बैंक्स को इस कंट्री के अंदर, कमर्शियल प्राइवेट और कमर्शियल पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ऑपरेट करे, मैनेज करे और रेगुलेट करे। 1948 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया और बैंकिंग कंट्रोल दे दिया गया। इन जुलाई 1955 इंपीरियल बैंक वाज नेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया and it was the first Indian bank which was nationalized to extend banking facilities to rural and semi-urban areas। पहला राष्ट्रीयकृत बैंक था, यानी सरकार ने इसकी पूरी पूंजी टेक ओवर कर ली, कैपिटल टेक ओवर कर ली, एक्वायर कर ली, और इसको 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। पहला बैंक जो हिंदुस्तानी ओरिजिन का हो सकता था वो ये बना। 8 associate banks of SBI were also nationalized as subsidiaries of State Bank of India between 1957 and 1960. So we all know that SBI earlier had 8 subsidiaries and before 2018 it had 5 subsidiaries. So State Bank of India की 5 subsidiaries थी 2018 तक, State Bank of Bikaner and Jaipur, State Bank of Hyderabad, State Bank of Mysore, State Bank of Patiala and State Bank of Travancore।
ये उस जमाने में स्टेट बैंक के अलावा बनाए गए कुछ बैंक थे जिनको स्टेट बैंक के साथ सब्सिडरी बना दिया गया, स्टेट बैंक को इसकी होल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। हम सब जानते हैं 2018 में 1 अप्रैल से ये पांचों बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो चुके हैं। They do not exist with the names called Bikaner and Jaipur, Hyderabad, Mysore, Patiala and Travancore. They have been clubbed into one. They have been merged into one entity, and that entity is called State Bank of India. ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये हमको समझने की जरूरत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है टू अंडरस्टैंड हाउ public sector banking, private sector banking and commercial banks flourished in India from the times of Arthashastra to the times of modern banking systems. So what else happened in the post independence era? जो भारत सरकार थी उसने 1960s में सोचना शुरू किया कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ही हम ये कोशिश करते रहेंगे कि केवल एक बैंक रूरल और सेमी अर्बन एरियाज तक पहुंच जाएगा तो ये इम्प्रैक्टिकल होगा। वी नीड टू हैव मोर बैंक्स अंडर द हेल्म ऑफ द गवर्नमेंट to tell them to go to the people across the country. So only State Bank of India would not be able to fulfill the objectives of developing habits of savings in the country. वैसे भी हिंदुस्तान उस वक्त बेहद गरीब कंट्री था, 30 से 40 करोड़ की पॉपुलेशन थी, लेकिन ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इलिटरेट थे और मजदूर कैटेगरी में आते थे। So it was very very important that how we can look at the development of saving habits in all these people. तो कैसे किया जाए? तो आपके पास मल्टीपल बैंक्स होने चाहिए। प्राइवेट बैंक होगा तो वो कमर्शियल पर्पसेस से बैंकिंग करते हैं, सोशल सेक्टर पर्पस से बैंकिंग नहीं करते कि चलो खाली अकाउंट खोलना है, उस पर्पस से बैंकिंग वो लोग नहीं करते। तो क्या करना होगा हम लोगों को? हमको ये करना होगा कि किसी भी सूरत में जितने भी बैंक्स हिंदुस्तान के अंदर थे उस वक्त, उसको सरकार ने टेक ओवर किया, अक्वायर किया उसकी कैपिटल को और उनको सबको नेशनलाइज कर दिया। और रेस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन लोन्स एंड एडवांसेस ऑफ बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनी कितना लोन और एडवांस किसी को देगी, कैसे देगी, इसके ऊपर पूरे तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई। विदाउट परमिशन, विदाउट लाइसेंसिंग, यू कैन नॉट इश्यू लोन्स एंड एडवांसेस टू सर्टेन सेक्टर्स। कहां लोन्स एंड एडवांसेस दिए जाएंगे? 1970 के बाद सरकार ने डायरेक्ट कर दिया बैंक्स को कोर सेक्टर्स डिक्लेयर कर दिए, एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स। क्योंकि इंडिया आप सब जानते हैं इज अ प्राइम एग्रो कंट्री, इट्स एन एग्रीकल्चरल कंट्री, इट्स इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर वाज डिक्लेयर्ड एज अ कोर सेक्टर टू एडवांस द एग्रीकल्चर फर्दर, टू डेवलप एग्रीकल्चर सेक्टर, टू हैव बेटर टेक्नोलॉजी, न्यू रिसोर्सेज, न्यू टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहों पर तब भी और अब भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत बड़े लेवल पर काम करती हैं, राइट? तो क्या पर्पस था? इनको और मोटिवेट किया जाए, इनको और फाइनेंशियली साउंड बनाया जाए, वायबल बनाया जाए, ताकि इनके बिजनेसेस फ्लरिश करें और बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में भी कन्वर्ट हो एंड दे कैन सपोर्ट एक्सपोर्ट्स ऑन द अदर हैंड। तो ये 3 कोर सेक्टर्स डिक्लेयर कर दिए गए 1970s में और सरकार ने। सर जो हाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है मतलब जो बहुत बड़े लेवल पे हैं, उनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? देखिए, ये मैं फिलहाल आपको हिस्ट्री का हिस्सा बता रहा हूं। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात मैं अभी कर रहा हूं, दैट इज अबाउट 1960s to 1980। उस वक्त सरकार ने कोर सेक्टर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की बात कही, अभी भी कहती है सरकार। Government of India has a core sector called small scale industries even now, but at that time government restricted all banking and financial companies to give any kind of loan and advances to bigger organization without its prior approval। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा था? क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा तादाद में हिंदुस्तान में काम करती थी और उनमें से कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स भी थी। तो अगर आप एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो यू विल गेट मोर अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी व्हिच विल बेटर द बैलेंस ऑफ पेमेंट। और उस वक्त हिंदुस्तान बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता था, एक्सपोर्ट कम करता था, बहुत ज्यादा। तो कीपिंग इन माइंड ऑल दीज थिंग्स, दिस पर्टिकुलर
restriction was imposed. I will come to the examples later. Just ask me the examples. But in 1985, banking operations were diversified. बैंकिंग तब तक केवल दो तरीके से होती थी कि भाई एडवांस लोन्स ले लीजिए या फिर डिपॉजिट्स जमा करवा दीजिए. Slowly and steadily, a number of banks at the nationalized level, they started opening current accounts for smaller businesses. These banks engaged with each other to open up agency houses and to manage businesses on behalf of each other. जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आप जानते हैं कि आप किसी भी बैंक का चेक कंट्री के किसी भी कॉर्नर में ड्रॉप बॉक्स में डालिए, आपके अकाउंट में पैसे आ जाए. अर्लियर इट वाज अ रिस्ट्रिक्शन, देयर वाज अ रिस्ट्रिक्शन दैट इफ इट इज अ चेक ऑफ आगरा, चेक पहले जब मिलता था चेक या ड्राफ्ट, तो वो एक रीजनल बाउंड्री या रीजनल ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू आता था. पेएबल इन आगरा, पेएबल इन जयपुर, तो आप उस चेक को ले जाके जोधपुर में डालेंगे, इट विल नॉट बी ड्रॉन ऑन योर नेम, इट विल बी हेल्ड बाय द बैंक. आप ब्रांच वापस जाएंगे, बोलेंगे ड्रॉप बॉक्स में मैंने डाला था, आपको चेक वापस कर दे. अब ऐसा नहीं है, सारे चेक्स एट पार होते हैं, कहीं कुछ नहीं लिखा होता, आप चेक ले जाइए कहीं पर भी डालिए, यू विल गेट मनी. Right? Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let us see what happened in 1991. 1991 आप सब लोग जानते हैं. Can somebody tell me what was recently in news 3-4 days back about 1991? It was talk of the town also. 3-4 दिन पहले काफी 1991 का डिस्कशन हो रहा था, टीवी में शोज भी आ रहे थे, न्यूज भी चल रही थी. किस चीज की? जो रिसेशन आया था इंडिया में, मतलब बैंक करप्ट होने के उस पे था 1991 में. ओके. एक्चुअली इंडिया में जो that was not just recession, that was a severe financial crisis in which India was debt ridden heavily and it was not able to pay its debt back. बहुत बुरी कंडीशन में थी, हिंदुस्तान दिवालिया घोषित हो सकता था, बैंकरप्ट हो सकता था हिंदुस्तान, दुनिया में इमेज खराब हो जाती हिंदुस्तान की बहुत बुरी तरह. और 2 हफ्ते का टाइम था हिंदुस्तान के पास, जब 24 जुलाई 1991 को डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ लिबरलाइज्ड इंडिया, globalized economy, and brought in the concept of privatization with social impact. पहला बजट था जिसने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नींव रखी, और उस बजट के ही थ्रू वो सब चेंजेस जो आज हम अपने एनवायरनमेंट में आसपास देख पाते हैं वो आपको मिलेंगे. So banking operations were further strengthened in view of opening up of the economy in pursuance to liberalization process. देखिए, बैंकिंग सेक्टर अगर आपका मजबूत नहीं है, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम आपका रेगुलेटेड टॉप मोस्ट अथॉरिटी वाला सेक्टर नहीं है, तो आप लिबरलाइजेशन नहीं ला सकते. आएगा कैसे लिबरलाइजेशन? विद द एडवेंट, विद द इन्फ्लक्स ऑफ मनी फ्रॉम फॉरेन मार्केट, फ्रॉम इंडियन मार्केट. पैसे कहां जाते हैं? बैंक में जाते हैं. अगर बैंक स्ट्रेंथन नहीं है, उसके पास बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसके पास डिसीजन लेने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, देन व्हाट बैंक्स विल डू? तो जो भारत सरकार के बैंक थे वो तो पहले से ही रिस्ट्रिक्शन झेल रहे थे. चाहे आप बैंक ऑफ इंडिया लीजिए, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देयर वर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन दीस बैंक्स टिल 1990. 91 was when these restrictions were lifted and license raj was removed. license raj का मतलब ये होता था कि अगर आप एक फैक्ट्री लगाएंगे इस कंट्री के अंदर कहीं पर भी, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज से आप एक लाइसेंस लेंगे. एक लाइसेंस तो फैक्ट्री लगाने का लेंगे, एक लाइसेंस लेंगे कितना प्रोडक्शन करूंगा, दूसरा लाइसेंस लेंगे कितना सामान बेचूंगा. तो एक नहीं, आपको मल्टीपल लाइसेंसेस लेने पड़ते थे टू डू बिजनेस इन दिस कंट्री. The entire license process was revoked. Companies Act 1956 was amended and was put in place. License वाला पूरा सिस्टम, लाइसेंसिंग अथॉरिटी खत्म कर दी सरकार. आप बिजनेस करना चाहते हैं, आइए कंपनी रजिस्टर करिए, लॉज को मानिए और अपना काम शुरू कर दीजिए. It has to be legal as per the Constitution of India, as per the local provisions of the states. तो बैंक्स जो इस पूरे ऑपरेशन को सपोर्ट करेंगे, भाई कंपनी पैसा कमाएगी, बैंक में डालेगी, सैलरी बैंक से देगी,
आज जो विजन इंप्लीमेंट हुआ है, दैट वाज सीन इन 1991. Banking sector was strengthened. What happened in 1991? Banking sector was first time opened for 51% equity by private players in the country. 1947 के बाद, आजादी के बाद जो नेशनलाइजेशन हुआ 1969 तक, उसके बाद पहला मौका आया जब सरकार ने कहा 51% इक्विटी यानी ओनरशिप के साथ प्राइवेट प्लेयर्स बैंक खोल सकते हैं. क्या कोई बता सकता है which were the first two banks that got opened under the liberalization process? Any idea? No, sir. HDFC Bank and ICICI Bank. गवर्नमेंट ने ICICI और HDFC नाम की दो सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस, कॉर्पोरेशंस थी, इनके शेयर्स बेच दिए, प्राइवेट प्लेयर्स को दिए. They brought the private banking for the first time in Indian history. They created HDFC Bank and ICICI Bank. दो सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस को कन्वर्ट किया गया बैंक्स में बाय सेलिंग ऑफ शेयर्स, और ये दोनों आज की डेट में इंडिया के जो टॉप 3 कमर्शियल बैंक्स हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स एंड नंबर ऑफ ब्रांचेस. SBI के बाद HDFC और ICICI Bank आते हैं. And that was the vision that was seen in 1991 to bring up private sector bank. By 2001, Government of India and other agencies focused on globalization process and started attracting foreign banks in the country. विदेशी बैंकों को भी हिंदुस्तान में लाने की तैयारी की गई, फॉरेन बैंक्स को भी कोशिश की गई कि वो अट्रैक्ट हो, इस कंट्री में आए. However, foreign banks came to this country, but they have a very small footprint in the country, क्योंकि हर जिस कंट्री से भी वो बैंक इंडिया में आए, उनके ऑपरेशन करने का तरीका कुछ डिफरेंट था. इन इंडियन एनवायरनमेंट एंड इंडियन पीपल, दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिट्स. फॉर एग्जांपल, इफ यू लुक एट HSBC बैंक, इट हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर. वो हर आदमी को लोन नहीं देगा, वो हर आदमी को क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, वो हर आदमी को बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए नहीं बोलेगा. हाउएवर, when you go to State Bank of India or public sector banks or HDFC, ICICI Bank, Yes Bank, they will give loans and other things to all kind of customers. The reason is that they have a global banking requirement. उनका एक इमेज है, उनका एक काम करने का स्टैंडर्डाइज्ड तरीका है, जिसको हिंदुस्तान में लाकर के उन्हें अमेंड करना पड़ेगा. इसलिए उन्होंने अपने बिजनेस को रिस्ट्रिक्टेड रखा टू द अपर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, एफ्लुएंट क्लास ऑफ द पॉपुलेशन. दो there are a number of foreign banks that came in this country. Joish Bank, वो भी इस कंट्री में आया. DBS बैंक सिंगापुर का बैंक है, वो भी इस कंट्री में है. कैथोलिक सीरियन बैंक, which was later taken over by HDFC, वो भी इस कंट्री में आया. So लोग आए, but again the banking sector of this country flourished. जो बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ, आप जानते हैं कि जो मेजर कमर्शियल बैंक्स थे प्राइवेट सेक्टर में बिफोर 1969, पहले इंपीरियल बैंक को पब्लिसाइज किया गया और उसका नाम बदला गया. उसके बाद मेजर कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, PNB, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एटसेट्रा. उसके बाद एक लीड बैंक स्कीम खोली गई. लीड बैंक स्कीम क्या है कि एक तरीके के लोन देने में या कोर सेक्टर को फोकस करने में कुछ 5 या 6 बैंक्स को मिलाकर एक लीड बैंक स्कीम बनाई गई. Some of the banks, they asked that, okay, who will support agriculture sector and I will give you some sort of subsidy. भारत सरकार सब्सिडी देगी और आप बताइए कि रूरल एरियाज में जाके एग्रीकल्चरल लोगों के अकाउंट्स कौन खोलेगा, ब्रांचेस कौन एस्टैब्लिश करेगा. So some of the big banks came forward. For some, you said small scale industries need to be promoted. What to do? Which bank will come forward? So some of the banks came forward. So that was called introduction of lead banking scheme. प्रायोरिटी क्रेडिट कॉन्सेप्ट, बैंक्स को प्रमोट किया गया कि वो प्रायोरिटी सेक्टर डिसाइड करें कि किस सेक्टर में कितना लोन दिया जा सकता है. सो फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर में भी किस तरीके के एग्रीकल्चरिस्ट को लोन दिया जाना ज्यादा फीजिबल होगा, किस तरीके के लोगों को नहीं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं लीज पर लेकर जमीन पर मजदूर की तरह खेती करता हूं तो मुझे लोन देना उतना इंपॉर्टेंट नहीं.
लेकिन अगर कोई ओनर है जिसके पास बड़ी जमीन का हिस्सा है, जिसके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड सिक्योरिटी है, उसको लोन दिया जा सकता है, राइट? These kind of things came under priority credit concept. Branch expansion phase 1955 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 1968 से नेशनलाइज्ड 15 बैंक्स थे हिंदुस्तान में, 18 टू बी वेरी प्रिसाइज, 18 and 5 subsidiaries of State Bank of India. They were asked to expand their business across India through branch banking system. ब्रांच किसी लोकेलिटी में पहुंचेगी, लंबे टाइम तक काम करेगी, तो लोकेलिटी के लोग ट्रस्ट करेंगे, कन्विक्शन आएगा, एंड दे वुड स्टार्ट ओपनिंग अप देयर अकाउंट्स एंड स्लोली स्टार्ट पुटिंग अप, बिकॉज अर्लियर it was not very easy to reach the core of India and ask them to open up accounts in bank. आप लोगों को पता है जब 2005 में प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टार्ट हुई, तब भी 30 करोड़ खाते खुले। इसका मतलब तब भी इस देश में 30 करोड़ लोग ऐसे थे who could not open accounts because of knowledge, awareness, secure sense of security, etc. भरोसा नहीं होता कई बार लोगों को। Then government introduced regional rural banks. Government started focusing on regions, like for example Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh. They started looking at South India, East India, North India, and West India, and they saw that some of these areas are not picking up because of the nature of banking. For example, आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच खोल दी महाराष्ट्र में, अहमदनगर में, और वहां हिंदी स्पीकिंग किसी आदमी को अपॉइंट कर दिया। एट दैट टाइम पीपल वर नॉट वेरी कन्वर्जेंट विद हिंदी, they were speaking in affluent Marathi or local terms like Gujarati. तो आपने क्या किया, रीजनल रूरल बैंक बनाया और रीजनल पढ़े लिखे लोगों को उस बैंक के अंदर डाला, so that people, a sense of trust could be developed among people. Differential interest rate schemes, लोन अगर आप किसी को दे रहे हैं प्रायोरिटी सेक्टर में, कोर सेक्टर में, एग्रीकल्चर को, एक्सपोर्ट्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, तो थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट का लोन होगा, और अगर आप नॉन प्रायोरिटाइज सेक्टर्स, नॉन कोर सेक्टर्स को लोन दे रहे हैं, तो फिर लोन का इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा होगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट सिस्टम। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बैंकिंग एक्टिविटीज, आई टोल्ड यू, एजेंसी हाउसेस, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स एंड सिक्योरिटी ऑफ चेक्स, राइट, facilities of joint banks, right, facilities of current accounts, right, banking business was separated from retail business, छोटे सेविंग्स बैंक अकाउंट्स को अलग कर दिया गया, बैंकिंग बिजनेस को अलग कर दिया गया, प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए, फिक्स्ड डिपॉजिट्स के साथ साथ रिकरिंग डिपॉजिट इंट्रोड्यूस किया गया, टर्म डिपॉजिट इंट्रोड्यूस किया गया। So different kind of products came into existence slowly and steadily. And if you look at diversified banking activities today, you would realize that for a number of activities you do not have to go to the bank. चेकबुक अप्लाई करनी है, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं। ड्राफ्ट बनवाना है, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं। किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, NEFT, RTGS, IMPS is available, right? You have to access account, आपको अपनी चेकबुक, पासबुक देखनी है, पासबुक मत अपडेट कराइए, ऑनलाइन लॉगिन करिए and look at that. Every facility is available online. You want to transfer money, you want to invest in mutual funds, you want to open an insurance account, सब कुछ, you want to pay bills, everything is available online. So look at the diversification from where you started in 18th, 17th century, कि advance और loans देने के अलावा कोई और काम नहीं था, और अब आप अगर देखेंगे तो diversified banking है, बैंक जाने की जरूरत नहीं है, 70% काम घर पर बैठे बैठे हो रहा है। So banking sector reforms came in after the liberalization era, which is after 2000. Nationalization को क्विकली कवर कर लेते हैं। 19th जुलाई 1969 को मेजर प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स को डिपॉजिट्स एक्सीडिंग 50 करोड़, जिनके पास 50 करोड़ से ज्यादा के डिपॉजिट्स थे, उन 14 मेजर प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स को सरकार ने राष्ट्रीयकृत घोषित कर दिया, उसकी कैपिटल को टेक ओवर कर लिया, और इन 14 बैंक्स में डिपॉजिट SBI के साथ जोड़कर 2000 करोड़ के करीब का डिपॉजिट था उस टाइम में, 1969। उसके बाद 1980 में 6 और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। सो नाउ द टोटल इज 14 + 6 20 and 1 SBI। 21 बैंक इस देश में हुआ करते थे जो नेशनलाइज थे 2016 तक, 2015 या 16 तक।
उसके बाद मर्जर्स शुरू हुए। और बैंक्स का नेशनलाइजेशन क्यों किया गया है मैंने पहले भी बताया, बैंकिंग, ब्रिंगिंग बैंकिंग सर्विसेज इनटू पब्लिक सेक्टर टू रीप सोशल बेनिफिट्स, लोगों तक पहुंचने के लिए, सेविंग्स की हैबिट डालने के लिए, कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फास्ट पेस्ड फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, एडिक्वेट क्रेडिट फॉर कोर सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट्स, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, गिविंग अ प्रोफेशनल बेंट टू बैंक मैनेजमेंट। देखिए जब आप नेशनलाइज्ड बैंक बनाएंगे, सरकार एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट को हायर करेगा और प्रोफेशनल लोगों को हायर करेगा, who will manage the bank through the board, who will give loans and accept deposits on the basis of certain regulations। सरकार का कानून भी समझेंगे, बैंक को कैसे चलाना चाहिए उसकी गवर्नेंस भी समझेंगे। एनकरेजिंग न्यू क्लासेस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ऑब्वियसली जो स्मॉल सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर, वो इसीलिए किया गया कि क्या इनमें से कुछ लोग आगे चल करके हिंदुस्तान में एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे and they would establish large scale organizations in the country? If yes, then let us focus on that area. So this is bringing up the new class of entrepreneurs, providing adequate training as well as reasonable terms of service for bank staff। बैंक स्टाफ को भी टाइम टू टाइम देखिए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं ग्लोबली and what are the changes that are happening in India, whether it is demographic or geographic other kind of changes, and provide adequate training to deal with such changes। तो ये जो है आप पूरा आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है, बैंकिंग ग्रोथ, हिस्ट्री, कमर्शियल बैंकिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल बैंकिंग टिल मॉडर्न। तो अगर इस पे कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछिए। Any questions? No, sir. No, sir. Okay, so we are left with another 10 minutes. Let me quickly start Reserve Bank of India and then we will close the class. Who can tell me something about Reserve Bank of India? Can someone tell me what is Reserve Bank of India? What does it do? So it is a national bank, and it monitors all the commercial banks। मतलब जो छोटे छोटे बैंक्स हैं जैसे SBI है या कोई भी PNB है, ये सब जाके जो है रिपोर्ट करते हैं RBI को। ये SBI छोटा बैंक नहीं है। मतलब सर RBI से तो छोटा है। नहीं, RBI से छोटा नहीं है। Look, the way RBI is constituted and it practices itself, and the way SBI is absolutely different. These are two different paradigms। RBI has not been given any responsibility of opening public deposits, giving loans to public. However, SBI doesn't। RBI provides advances and takes deposits from these public sector and private sector banks. So it's typically banker's bank। RBI is nothing but a banker's bank। At the same time, while providing these services, it is also the moderator, regulator, and governor of the banking and financial services in the country। So let us try and understand what is Reserve Bank of India and how does it look like, etc., etc. Reserve Bank of India was established on April 1st, 1935, according to the provisions of Reserve Bank of India Act 1934, right? Central office of the Reserve Bank was initially in Calcutta, but later on it was permanently moved to Mumbai in 1937. The central office is where the governor is going to sit. He is sitting over there, and that is the office where policies are formulated। Originally privately owned, since nationalization in 1949, Reserve Bank of India is fully owned by Government of India, which means 100% of the shares of Reserve Bank of India are held by Government of India since 1949। तो जो Reserve Bank of India Act 1934 that was amended in 1948 to reclaim all the capital of Reserve Bank of India to the Government of India। ब्रिटिश एरा में कानून बना 1935 में, अमेंड हुआ जब भारत की सरकार बन गई 1948 में, और इनिशियली RBI started its business with 5 crore rupees, और पहला गवर्नर जो RBI का था that was Dr. Osborne Smith। और after independence the first governor of RBI was C.D. Deshmukh, Chintaman Deshmukh, who later went on to become finance minister also of the country।
RBI was nationalized on 1st January 1949. RBI की जिम्मेदारी बाकी बैंकों से बिल्कुल अलग है। जो बाकी बैंक हैं उसमें आप कभी भी जा सकते हैं, you can open your account in that bank. However, Reserve Bank of India is not like that. It is governed by the preamble of the establishment of Reserve Bank. Reserve Bank जो है वो उससे govern होता है. So let us see what is the preamble reads. To regulate the issue of banknotes, keeping of reserves with a view of securing monetary stability in India. तो इसका मतलब बैंक नोट्स को इश्यू करने को रेगुलेट करता है। बैंकिंग की जो करेंसी है इस कंट्री में, रुपया जो इसकी ऑफिशियल करेंसी है, उसके करेंसी नोट्स और कॉइन्स को छापने का, बनाने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, रेगुलेट करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कीपिंग रिजर्व्स विद अ व्यू ऑफ सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मनी का जो फ्लो है वो स्मूथ होना चाहिए। बैंक से निकलकर पैसा कहां जा रहा है, कितना जा रहा है, लोग कितना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, डिपॉजिट से, और कितना पैसा जमा कर रहे हैं, इसका एक बैलेंस बिठाना और देखना कि क्या कंट्री के अंदर डिपॉजिट्स खत्म हो रहे हैं। इफ डिपॉजिट्स आर गेटिंग ड्राइड अप इन द कंट्री देन इट इज अ डेंजरस साइन। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंश्योर्स दैट दीज डिपॉजिट्स आर ऑलवेज मेंटेन्ड। और वो कैसे मेंटेन करता है वो मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। Generally to operate the currency and credit system of the country, very simple. जो कंट्री में रुपया छापना, बनाना, फ्लो करना, कैंसिल करना और लोन दिलवाना, लोन से रिलेटेड रेगुलेशंस बनाना, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। To its advantage to have a modern monetary policy framework. देखिए कोई किसी भी कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम दो पॉलिसीज पर डिपेंड करता है। फर्स्ट पॉलिसी इज फिजिकल पॉलिसी, जिसको कहा जाता है बजटरी पॉलिसी, बजटरी कंट्रोल, जिसके अंदर हम देखते हैं कि साल भर में हमारा कितना खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर, एंड व्हाट विल बी आवर इनकम फॉर द ईयर, एंड लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर इफ वी कैन हैव मोर सोर्सेज ऑफ इनकम एंड सी इफ वी कैन एक्सपेंड मोर इन टर्म्स ऑफ सोशल सेक्टर डेवलपमेंट। दैट इज कॉल्ड फिजिकल पॉलिसी। भारत सरकार देखती है, खास तौर पे वित्त मंत्रालय। फाइनेंस मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल पॉलिसीज and they have staff equipped to take decisions related to fiscal systems. Fiscal deficit आप जानते हैं सब लोग, expenditure is more than income. In that situation we call it fiscal deficit. Monetary policy, this is the second policy, this is the second general rules guidelines which control the flow of money. मनी का कंट्रोल फ्लो करना, वो फ्लो को कंट्रोल करना, कितना मनी प्रोड्यूस किया जाए, कितना मार्केट में डाला जाए, बैंक्स कैसे ऑपरेट करेंगे, कितना बैंक्स डिपॉजिट लेंगे, कितना बैंक्स डिपॉजिट आरबीआई में जमा करेंगे, ये सारी पॉलिसी बनाना मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है। और इसका एकाधिकार जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। इट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज पर द ऑपरेशनल हायरार्की टू ओन द फ्लो ऑफ मनी। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा, इट इज डिबेटेबल, और हालांकि डिबेट अब इस कंट्री में ज्यादा होती नहीं है। 8 नवंबर 2016 किसी को याद है? यस सर। क्या हुआ था 8 नवंबर? डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का क्या मतलब है? नोटबंदी, पुराने नोट जो थे वो बंद कर दिए थे। क्या किया था उसमें? सर नई करेंसी आई थी और मतलब और जो पुराने 500,000 के नोट थे वो बैन कर दिए थे। किसने अनाउंसमेंट किया था? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। क्या मनी से रिलेटेड अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर कर सकता है? हाँ सर। अगर कर सकता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको आज तक किसी ने आंसर नहीं किया, बारिंग अ वेरी फ्यू पीपल। और मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को ये सब चीजें पता होनी चाहिए। रघुराम राजन, who was ex-governor RBI at that time. Second, Dr. Y.V. Reddy, who was also one of the ex-governors of RBI, and D. Subba Rao. These were the three people who questioned that monetary policy framework is constitutionally created, operated, managed
by Reserve Bank of India. It's the decision of the Board of Reserve Bank of India to announce whether they will have this currency or not, or what amount of currency should be cancelled, what amount of currency should not be cancelled. Government of India, particularly in particular Finance Ministry, has an advisory role where they can go and advise the bank that you can do this. भारत सरकार में किसी के भी पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो नोट इश्यू करेगा या कैंसिल करेगा, केवल गारंटी देती है भारत सरकार. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव्स अ गारंटी एंड दैट गारंटी इज एक्सटेंडेड ऑन बिहाफ बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आप पढ़िए, नोट के ऊपर लिखा होता है केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत, गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट. और साइन नोट पर जो हैं वो रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं, बारिंग 1 रुपी नोट. 1 रुपए के नोट पर जो है वित्त सचिव के साइन होते हैं. तो ये एक बहुत अजीब नैरेटिव खड़ा हो गया था कि क्या प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री नोटबंदी जैसे फैसले का ऐलान कर सकते हैं क्योंकि वो गारंटर हैं. लेकिन इस पर ज्यादा टाइम तक डिबेट हो नहीं पाई, क्योंकि आप जानते हैं आजकल ज्यादा डिबेट नहीं होती है. वन फ्लो इज अलाउड, द सेकंड फ्लो इज नॉट अलाउड. So to have a modern monetary policy framework, that is why ये particular point मैंने explain किया आपको, to meet the challenge of increasingly complex economy. Increasingly complex economy का क्या मतलब? हिंदुस्तान से ज्यादा बढ़िया और चाइना से ज्यादा अच्छा complex economy का example नहीं हो सकता. Why I am saying that? आप हिंदुस्तान की economy को ध्यान से देखिए लेंस लगा करके, you would realize that we have a formal economy of about 20% and informal economy of about 80%. कोई जानता है कि ये मैंने क्यों बोला? इनफॉर्मल इकोनॉमी भी है हमारे यहाँ 80%. क्या होती है इनफॉर्मल इकोनॉमी? तो पॉपुलेशन में जो पॉपुलेशन के हिसाब से आई थिंक. व्हाट इज इनफॉर्मल इकोनॉमी और व्हाट इज फॉर्मल इकोनॉमी? कोई एक बताइए इनमें से, तो दूसरे का फर्क समझ में आएगा. पॉपुलेशन तो ठीक है, डेमोग्राफी. इनफॉर्मल इकोनॉमी सर वो लोग जो एम्प्लॉयड नहीं है या फिर उनको फैसिलिटीज वगैरह, मतलब वो सर ऑन पेपर वर्क नहीं होता, मतलब मतलब सर जैसे कि जो हाँ, बहुत ऑन पेपर का क्या मतलब है? ओके, एम्प्लॉयड और नॉट एम्प्लॉयड इज मे बी दैट इज नॉट द राइट टर्म. जो फॉर्मल है वो शायद टैक्स का है, जो लोग टैक्स देते हैं, मतलब बहुत कम लोग देते हैं. और इनफॉर्मल है जो मतलब लोग टैक्स नहीं देते, मतलब जैसे आप एग्जांपल देते रहते हो कि गवर्नमेंट जो ये ठेले वाले होते हैं इनकी इनकम तो काउंट ही नहीं करती. बिल्कुल सही आपने कहा. देखिए, जो लोग टैक्स नेट से जुड़े हैं वो एक ही तरीका है हिंदुस्तान में जिससे सरकार ये पता कर सकती है कि कितने लोग इस देश में कमाते हैं, अर्निंग करते हैं. और ऐसा माना जाता है कि इस देश में केवल 6.5% लोग हैं जो अर्निंग करते हैं. बहुत ताज्जुब होगा आपको ये जान करके. और 2% लोग टैक्स देते हैं. इस देश में 2% का मतलब 2.6 crore people. They pay taxes. And rest of the people, what they do? We don't know. तो ये एक बहुत अजीबोगरीब सवाल है कि इतनी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी को संभालना बहुत मुश्किल काम है. तो सेंट्रलाइज्ड बैंक ताकतवर होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग की स्वतंत्रता होनी चाहिए उसके पास, उसकी मर्जी का काम उसको करने दिया जाना चाहिए. एंड दैट इज व्हाई आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड आल्सो. इससे ज्यादा खराब हालत थी 1948 में जब आरबीआई बनाया गया. टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रोथ. प्राइस स्टेबिलिटी कैसे आती है? फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपस में टकराते हैं, दैट दे क्रिएट द फ्रिक्शन फॉर प्राइस स्टेबिलिटी. और प्राइस स्टेबिलिटी एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा. हिंदुस्तान में $1 75-76 रुपए के आसपास है. 8-9 साल पहले ये 67-68 था. ठीक, 9 रुपया बढ़ गया. ये जो 9 रुपया बढ़ा,
इसकी वजह से आपके इंपोर्ट्स महंगे हो गए। अब आप कुछ भी इंपोर्ट करते हैं 9 रुपए ज्यादा देते हैं। अगर आप 10,000 लीटर तेल खरीदेंगे तो 9 रुपए के हिसाब से महंगा देंगे पैसा, 90,000 रुपए महंगा हो गया तेल। सो व्हेन यू स्पेंड इन डॉलर्स यू स्पेंड मोर, और डॉलर्स में होता है ज्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सो महंगाई बढ़ती है इससे। जो रुपए की इंटरनेशनल पोजीशन है, इफ इट गेट्स वीकेंड, महंगाई बढ़ती है। तो कुछ पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है ही इसलिए कि वो फ्लो ऑफ मनी को इस तरीके से होने दे कि रुपया कमजोर ना पड़े। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बड़ा बढ़िया। 61 रुपए वैल्यू थी जुलाई के शुरू में, जुलाई 2013 के शुरू में 61 रुपए था पर डॉलर। वो अचानक से 67 रुपीज पर डॉलर हो गया बाय द टाइम वी केम टू द बिगिनिंग ऑफ सितंबर। 2 महीने के अंदर व्हाट हैपेंड, हु केम टू द रेस्क्यू? बाय द टाइम जो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे डॉक्टर रेड्डी, उनका कार्यकाल खत्म हो गया था एंड वी वर सपोज्ड टू अपॉइंट अ न्यू गवर्नर। रघुराम राजन नए गवर्नर बने, आई थिंक सितंबर सेकेंड वीक या थर्ड वीक में कभी बने इन 2013, और 67 से 66 पे ले आए और 66 पर ही रहा 2016 तक। 66-67 के आसपास रहा 2016 तक, क्योंकि उन्होंने सरकार की कुछ बातें मानी नहीं। सरकार ने कहा कि भाई आप अपने मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर इन्वेस्टमेंट के कुछ रूल्स चेंज कर दो। उसने कहा मैं नहीं करूंगा। कि क्यों नहीं करोगे? तो उसने कहा प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क की जिम्मेदारी है, वो मेरे अंडर आती है, मैं आपकी बात नहीं। और ऐसा उन्होंने सिर्फ इस सरकार या उस सरकार के सबके साथ किया। पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे 13 to 14, बिल्कुल बात नहीं मानी उन्होंने, और 14 to 16 अरुण जेटली रहे, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। एंड ही वॉज वेल अप्रिशिएटेड फॉर व्हाट ही डिड। प्राइस वास्तव में कंट्रोल में रहे, इंटरनेशनल मार्केट में रुपी मजबूत रहा और कुछ भी चीज इधर से उधर नहीं। 16 का सितंबर आया, रघुराम राजन रिटायर्ड, ही वाज नॉट ऑफर्ड अनदर टेन्योर। क्यों? क्योंकि वो बात नहीं मान रहे थे, और बात मानने वाले गवर्नर का अपॉइंटमेंट कर दिया गया, और उसी साल आपने डीमोनेटाइजेशन कर दिया। डीमोनेटाइजेशन से किस चीज की जड़ें हिल गई? इनफॉर्मल इकोनॉमी की जड़ें हिल गई हिंदुस्तान में। जो आदमी केवल कैश में ट्रेड कर रहा था, उसकी जड़ें हिल गई। कहा तो ये गया कि हमने 500 और 1000 का नोट बंद किया, 10-50 रुपए का नोट थोड़ी बंद किया। बट सेविंग्स बड़े नोट में की जाती है, छोटे नोट में नहीं की जाती। गरीब से गरीब आदमी बड़े नोट में सेविंग करता है, 500 या 1000। वो इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है वो ध्वस्त हो गई बुरी तरह। चाहे वो बिल्डिंग बनाने वाले मजदूर हों, चाहे वो घरों में सफेदी करने वाले मजदूर हों जो आप किसी चौक से पकड़ के ले आते हैं, सफाई करने वाले लोग हों जो प्राइवेटली कॉन्ट्रैक्टेड हैं, उन सबको खत्म कर दिया एक लंबे समय के लिए नोटबंदी में। उनकी सेविंग्स ड्राई हो गई, क्योंकि उन्हें अपनी सेविंग्स को लेकर कहां जाना है ये पता नहीं चला। बहुत सारे लोगों ने पैसे जमा कर दे दिए अकाउंट्स में, और काला धन सफेद हो गया। तो ये जो एक इनफॉर्मल इकोनॉमी, फॉर्मल इकोनॉमी का साइज बढ़ाने के चक्कर में सरकार ने ध्यान नहीं दिया कि कितना वॉल्यूम ऑफ करेंसी हम चेंज कर रहे हैं। 87% करेंसी जो है उन्होंने चेंज कर दी। इतनी बड़ी करेंसी एक साथ हिंदुस्तान के अंदर। हम लोग कोई इंडोनेशिया थोड़े ही हैं कि कोई छोटी छोटी क्रोएशिया जैसी कंट्री नहीं है हम लोग, जहां पर आसानी के साथ 50-60 लाख लोग या 1 करोड़ लोगों के बीच आपने डीमोनेटाइजेशन लगा दी। फ्लो ऑफ करेंसी देखिए आपने 87% करेंसी डीमोनेटाइज कर दी रातों रात। इट वॉज नॉट अ फेयर डिसीजन टू टेक। काला धन सफेद करा लिया पता नहीं कितने लोगों ने इस देश में। जिसके पास 100 रुपए काले थे उसने भी करा लिया, जिसके पास 100 करोड़ काले थे उसने भी सफेद करा लिया। कुछ नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टिगेट करके उस आदमी को पकड़ने में 20 साल लगेंगे आपको कि अच्छा इसने सच में ब्लैक मनी था इसके पास, ये इन्वेस्टिगेट करने में। क्योंकि लोगों ने क्या किया, अपने नौकरों के अकाउंट में पैसे डलवा दिए। मेरे घर में 10 नौकर हैं,
10 के अकाउंट में 1 लाख डल गया, 10 लाख होगा, काम खत्म, उनकी इनकम दिख गई। जनधन खाते खुलवाए, पहले तो सरकार ने 2015 में जनधन खाते खुलवाए, उसके बाद डीमोनेटाइजेशन कर दिया। जनधन से पहले करना चाहिए था डीमोनेटाइजेशन, कम से कम गरीब आदमी 10 लाख रुपए लेके 1 लाख रुपए लेके बैंक आता अपने पैसे लेके कि जी से बैंक में डाल दो। दैट इज वेयर द रूल ऑफ आरबीआई केम इनटू एग्जिस्टेंस। आरबीआई के पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज है मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दुनिया भर के बड़े बड़े आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के साथ काम कर चुके इकोनॉमिस्ट इसके बोर्ड में बैठे हैं। वो इकोनॉमिस्ट जो आईआईएम में इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं या जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, आईआईटीज में डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में काम करते हैं, जिनका रोजाना का मैटर है इकोनॉमिक्स को देखना। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ को दिमाग में रखते हुए प्राइस स्टेबिलिटी, कई बार आपको रेडिकल डिसीजन नहीं लेने चाहिए, बट रेडिकल डिसीजन लिया गया। तो यहां हम रोक देते हैं कि कैसे एस्टैब्लिश हुई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी क्या छोटी सी हिस्ट्री है फ्रॉम 1935 टू प्रेजेंट, and what is the preamble, what or through preamble we have tried to understand what and how of Reserve Bank of India. From tomorrow we will understand what is administration and management of Reserve Bank of India. Okay सर, जो आपने रुपया स्ट्रॉन्ग करने वाली बात बोली थी,